Dear students, Assalamu alaikum. Once again with another important lecture on the bioenergetics. But in this lecture, I will just discuss about the photosynthesis. Just introduction of photosynthesis only. Process we will discuss in next two lectures. Light reaction and dark reaction we will discuss separate. Photosynthesis. Photo means light. Synthesis means to prepare और synthesis. फोटोसिंथेसिस का मतलब है ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी चीज को बनाया जाए मगर लाइट की प्रेजेंस में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। प्लांट जो है सनलाइट यूज करते हैं और सनलाइट में ब्लू और जो है रेड लाइट रिक्वायर्ड होती है क्योंकि दैट्स इनफ टू ब्रेक द वाटर। Breakdown of water is known as photolysis, and we will discuss in detail also. So here, photosynthesis occur always in green parts of the plant. Photosynthesis always occur in green parts of the plant that mostly should be the leaves, yeah, mostly their stem. The green part of plant that's known as chlorophyllous part, greenish part. Sunlight that reach on the surface of leaf. On the leaf, yeah, in the leaf, there is a presence of cells, and cells possess chlorophyll and chloroplast. Chloroplast is an organelle, is like room. Room is chloroplast, and chairs, or we can say the tables, or other things are especially named as the necessary things. Yeah, accessory things is like that one. Inside the chloroplast, these chair tables and other materials like that is the pigment. From that pigment, chloroplast is a pigment to trap the sunlight, absorb the sunlight, or other things. So chlorophyll give green color. Chlorophyll give green color to the plant. Chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, chlorophyll D. All are responsible to absorb the sunlight. Chlorophyll molecules are present on the membrane of the thylakoid. Thylakoid membrane possesses the photosystem. In photosystem, these chlorophyll molecules are present for the absorption of sunlight. And here you can see this is a sunlight that reach on the surface, and this is a inner structure of a cell. Yeah, inside the cell there is availability of chloroplast. This is chloroplast. This is chloroplast. Inside the chloroplast already we have discussed. Outer chloroplast externally that possesses two membranes because that is a double membrane, and it used for the photosynthesis two things from the atmosphere. One is a sunlight and other is carbon dioxide. Carbon dioxide used in the presence of sunlight, and breakdown of water occur. Breakdown of water occur in light reaction. फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है उसमें ये वाटर टूटता है और उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोटोलाइसिस। ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस फोटोलाइसिस में क्या होता है कि वाटर ब्रेक होता है और उसमें से दो हाइड्रोजन आयन और एक ऑक्सीजन एटम कह दें या ऑक्सीजन जो है हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हम स्पेशली लिखते हैं, और उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NADPH एंड ATP फॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं। और जबकि ऑक्सीजन जो है रिलीज आउट होता है, जो कॉमनली आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड यूज है तो ऑक्सीजन जो है रिलीज आउट करता है कौन? प्लांट जो क्लोरोप्लास्ट है। सो वाटर प्लांट कहाँ से यूज कर रहा है? जमीन से। और कार्बन डाइऑक्साइड और कौन सी चीज यूज कर रहा है? सनलाइट। हाँ, सो सनलाइट
carbon dioxide or water, these are known as a reactant. Yeah, especially carbon dioxide and water is known as a reactant. And next one is a product. We discuss next one. You can see here, this is the equation. Carbon dioxide, this one. Water, this one. Carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll to form the glucose and oxygen. This one is a reactant. Here you can see carbon dioxide, water, both are known as a reactant, while this one is a glucose and this is a oxygen. This is known as a product. The reactant of photosynthesis is a carbon dioxide and water, and product is glucose and oxygen. But all processes occur in the presence of sunlight. So photosynthesis requires two things. One is carbon dioxide and other is water. Carbon dioxide always used in dark reaction, and water always used in light reaction by the help of photolysis process. कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड लाइट रिएक्शन में यूज नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा डार्क रिएक्शन में यूज होगा। तो इस वजह से आगे चलकर हम जब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को सेपरेट करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो ये वाला प्रोसेस जो है, आगे चलते हैं हम। तो ये अगेन देखें, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड हियर, अगेन दिस इज अ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, sorry 12 water molecules. From this 6 plant use, remaining 6 one that release out, sorry this one. इसमें 12 अवेलेबल है, 12 में से 6 जो ग्लूकोज है वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो यूज होते हैं, 6 रिलीज हो जाते हैं। तो 6 जो है सेम रहते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये वाला, और इसमें से ये यूज होगा ये वाला। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो ग्लूकोज बनता है उस फोटोसिंथेसिस में, जो ग्लूकोज बनता है उसमें 3 चीजें होती हैं। वन इज कार्बन एंड अदर इज हाइड्रोजन, थर्ड वन इज ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज के लिए जो ये 3 चीजें, ये वन सॉरी ये वाला देखें, ओ ये वाला, ये नहीं। तो प्लांट को जो 3 चीजें हैं ग्लूकोज के अंदर, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा क्या है, हाइड्रोजन। तो प्लांट में जो वाटर से प्लांट लेता है वो कौन सी चीज है, वो है 2 हाइड्रोजन 1 वाटर मॉलिक्यूल्स। ऐसे ये कहां से मिलते हैं, ये वाले। और जबकि ये कार्बन डाइऑक्साइड में से जो 2 कार्बन, एक कार्बन और दूसरी चीज ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों यूज होते हैं। तो मीन्स कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन तीनों को जब मिलाते हैं तो उसमें से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और ये जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, हमेशा ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, इस जगह पे देखें ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ये वाला। तो ऑक्सीजन कहां से रिलीज होता है, इस वाटर से, ये वाला 1/2 भी हम देते हैं, हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का भी नाम देते हैं। अगेन लिसन केयरफुली, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में से ली जाती है और वाटर जमीन से लिया जाता है। इन दोनों को मिलाकर उनमें से बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और वाटर भी रिलीज होता है। तो ग्लूकोज में 3 चीजें मौजूद हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन जो ग्लूकोज को मिलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से, बाकी जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से मिलता है, वो वाटर से मिलता है। तो लाइट रिएक्शन से हाइड्रोजन ऐड होता है NADPH के साथ, और उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड हवा में से मिलती है। तो ये दोनों चीजें आपस में मिलती हैं। ये किस तरीके से होता है, कैसे प्रोसेस होता है, ये इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट प्रोसेस जो है प्रोसीड होता है। हियर वी कैन सी हियर, अगेन यू कैन सी हियर, दिस वन इज अ वाटर, और ये वाटर से जो है कौन सी चीज रिलीज हो रही है, ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। और उसके बाद ये हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इस जगह पे, ये वाटर कंप्लीट हो गया। अब ये कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड में 2 चीजें हमारे पास अवेलेबल है, एक ये और दूसरी ये ऑक्सीजन अवेलेबल है।
तो इस तरीके से ये वाटर, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि इस जगह पे वाटर